बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था, and that is variants of simplex method. We have discussed earlier about these 5 things in our previous 2 lectures: minimization, inequality in the wrong direction, degeneracy, unbounded solution, multiple solution. Minimization, inequality in the wrong direction, degeneracy, unbounded solution, and tie for the basic variable, that was degeneracy, temporary degenerate solution, unbounded solution. Now our aim is to discuss unbounded solution space but bounded optimal solution. प्रीवियस में हमारे पास क्या था, हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस था, कोई हमारे पास रिजल्ट फिजिबल नहीं आ रहा था ऑप्टिमल, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है ऑप्टिमल। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जो अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस में होते हैं बट वो ऑप्टिमल होते हैं, ठीक है, उनका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, बाउंडेड ऑप्टिमल होता है, सिंपल कहते हैं ऑप्टिमल होता है। देखें अनदर एग्जांपल, आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, z माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 0। This is x minus y less than 10, you will write as x minus y plus s1 equal to 10. This is x, you will write x plus s2 equal to 20. This is the 3 constant, you will convert these constant into the tabular form, as already discussed this thing many times. So then after that we can see here the most negative number is minus 3. You can see that minus 3 represent that x will enter the basis, x बेसिस में एंटर करेगा, और हमें बेसिस में एंटर करवाने के लिए हम रेशियोज निकालते हैं। z के अलावा जो इक्वेशन है दिस एंड दिस, 10/1 10, 20/1 20, इसका मकसद है कि आपके पास हिमालयस रेशियो है 10। हेयर यू कैन सी दैट s1 विल लीव x1 एंटर द बेसिस, यू कैन सी हियर x s2, ओके। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास s1 1 है, इसके ऊपर भी 0 होना चाहिए, इसके नीचे भी 0 होना चाहिए। तो for making that element 0, what we do, we write new z equation is equal to old z equation. Okay, old z equation is this plus 3 times the pivot equation. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा, रिमेनिंग पे भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। And another thing is new s2 equation will be old s2 equation minus 1 times s1, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाएगा। This is how we will compute this equation z, new z and new s2 equation. This has been computed and you can see that x has entered the basis and the coefficient of x in this column is 1 and other are 0. Still here we can see that -2 is a negative number in the objective function. In order to obtain the optimality, it is necessary this number should be positive. All numbers should be positive in objective function. Therefore, -2 will enter the basis and one of the variables should leave the basis, either x or s2. Now what will we do? We will divide this 2 element on right hand side. 10/-1 will be -10 and 10/1 will be equal to 10. The smallest positive number is 10, because we are saying smallest positive number is it means your y will enter the basis and your s2 will leave the basis, and when your s2y is entering the basis and s2 is leaving the basis, this is s2, this is pivot element, and remaining element of the pivot column will be 0. You can see here 0. Once again you will write new z equation will be equal to old z equation plus 2 times the s2 equation. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, 0. New x equation will be equal to old x equation plus s2. Okay, old x equation plus s2, this pivot equation, प्लस करेंगे तो माइनस प्लस -1 + 1 0. You can see here after y enters the basis and s to leave the basis, you obtain this, and now you can see that there isn't any negative number in the z equation. आप देख रहे हैं कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है,
इसका मकसद है you have obtained the required result. And from the second iteration, we conclude that optimal solution is z equal to 50, z equal to 50, okay, and your x equal to what, 20, and your s1 equal to 0, okay, and your s2 equal to 0. ठीक है, ये चीजें हमने ऑब्टेन की, ओके। एक्स आपके पास क्या है 20, वाई आपके पास क्या है 10, एंड आपके पास जेड, दिस इज जेड, जेड इक्वल टू 50. The above problem is represented graphically in figure 2 to indicate that there is bounded optimal solution even though the solution space is unbounded. देखें ग्राफिकली हमारा टॉपिक क्या था, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, स्पेस है, बट बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। स्पेस में जो आप ग्राफिकली बताएंगे, देखें क्या बताएंगे ग्राफिकली, देखें आपने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, x माइनस वाई इक्वल टू 10। आप क्या करते हैं, y 0 रखते हैं तो x 10 आता है, और x 0 रखते हैं तो y माइनस 10। देखें ये रहा, y minus 10, x 10. This is your line, okay? This will represent this line. मूव करते हैं x इक्वल टू 20, चलें भाई ये रहा x इक्वल टू 20, ठीक है। दिस इज आपका जो ग्राफ है वो लेस देन है, ये भी आपके पास क्या है, सॉरी दिस इज नॉट दिस वन, ये क्या आपके पास, ये भी लेस देन 10 है, और ये भी आपके पास क्या है, लेस देन 20। अब आप क्या है, 0 पुट करेंगे, ओरिजिन में तो ये लाया कर रहा है, ओरिजिन में लाया कर रहा है तो आप कहते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन। देखें दैट इज व्हाई वी से दैट टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओके। हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहाँ है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, यही है ना। देखें x माइनस वाई, एक्स हमने कहा टूवर्ड्स द ओरिजिन है, बट ये बाउंडेड तो नहीं है ना, ठीक है। बाउंडेड मतलब कि ये सॉल्यूशन स्पेस आपके पास अनबाउंडेड है, कहीं से भी। बाउंडेड किसे कहते हैं, जो आपका जिसमें कार्नर पॉइंट हो जाता है, रेक्टेंगल टाइप बन जाता है, वो आपके पास दिस वन, देखें ये बाउंडेड हो जाता है। ये देखें अनबाउंडेड है आपके पास सॉल्यूशन, सॉरी दिस वन कहीं से भी बंद नहीं है। सिमिलरली दिस इज अनबाउंडेड। तो कह रहा है कभी कभी अनबाउंडेड जो आपके पास सॉल्यूशन स्पेस होता है उसमें सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ जाता है ग्राफिकली, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो अनबाउंडेड है, इसके पास तो नहीं होगा। लेकिन देखें आपको पता है दिस इज कार्नर पॉइंट, आप पता है ना, आप कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है जहाँ कट करता है या कार्नर, इसमें यहाँ तो कार्नर तो नहीं आ रहा है, स्पेस आपके पास ओपन स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। आपने देखा कि स्पेस आपका ओपन है, अगर यहाँ से मैं इसको इसे बंद करता ना ऊपर से लाइक दिस, तो आप कहते हैं कि हाँ आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बाउंडेड है, बट यू कैन सी दैट द आपका जो स्पेस है वो अनबाउंडेड है, बंद नहीं है, दैट इज व्हाई वी से दैट। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था यहाँ पे भी देखें, आपका जो सॉल्यूशन स्पेस था अनबाउंडेड था, और इसमें आपके पास सॉल्यूशन क्या आ रहा था, ऑप्टिमल नहीं आ रहा था, लेकिन इन दिस केस आपके पास ऑप्टिमल आ गया। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है, कभी टाई हो जाता है, कभी बेसिक वेरिएबल 0 हो जाता है, कभी सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाता है, कभी सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड होता है ग्राफिकली, बट यू सी दैट द सॉल्यूशन जो आप ऑब्टेन करते हैं वो ऑप्टिमल हो जाता है। दिस इज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड के, उसमें जो आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं कि आपको पता होना चाहिए टाई होगा तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपके जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है, फिर क्या करेंगे। और आप ग्राफिकली कहते हैं कि अनबाउंडेड है, लेकिन जब हल करके देखते हैं कि वो तो कट कर रहा होता है, उसको आप रेफर कर देते हैं एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, स्पेस अनबाउंडेड है। इसका मकसद है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन स्पेस हो, उसके बाद रिजल्ट नहीं हो, नहीं आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। इन दिस बोथ एग्जांपल वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट। फिर हमने उससे पहले डीजेनरेट भी पढ़ा, टेम्पररी डीजेनरेसी ये नहीं है कि परमानेंट होती है, सम टाइम वो टेम्पररी भी होती है। उससे पहले आपने पढ़ा कि भाई इनइक्वलिटी भी होती है रॉन्ग डायरेक्शन में, उसको आपसे बिग एम टेक्निक या टू फेज से रिमूव कर सकते हो। मिनिमाइजेशन होता है तो आप उसको मैक्सिमाइजेशन कर सकते हो। And we will continue to our last point, and further we will discuss in our next lecture point number 7, that is multiple or alternative optimal solutions.
and the last one will be unrestricted variables. Today I will tell you about the non-existing feasible solution. What is non-existing feasible solution? Again, this happens when there is no point in the solution space satisfying all the constant. कह रहा है ये कब होता है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता है सॉल्यूशन स्पेस में जो आपके कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे, तो आप कहते हैं वो नॉन एग्जिस्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन है. In this case, the constant may be contradictory or there may be inconsistency among the constants. कह रहा है contradiction भी हो सकती है, hold करेंगे नहीं करेंगे, inconsistency भी हो सकती है. Thus the feasible solution space is empty. और कहता है इसी वजह से कहते हैं कि जब एक कांस्टेंट भी किया दूसरे पे नहीं हुआ, दिस इज इनकंसिस्टेंसी, कंट्राडिक्शन कर देता है, एक पे हो रहा है दूसरे पे नहीं हो रहा है. और दैट इज व्हाई द सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस इज एम्प्टी. जो आपका सॉल्यूशन स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है. एंड द प्रॉब्लम इज नो फिजिबल ग्राफिकल अप्रोच एंड देन बाय सिंपलेक्स मेथड. कह रहा है इसी तरीके से हम कहते हैं कि उसके पास फिजिबल ग्राफिकल अप्रोच नहीं है और बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स मेथड. समटाइम ऐसे होता है कि जब हम थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं तो हमें क्लियर समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. हमें ये चीज़ आ गई कि हेडिंग इसकी दी नॉन एग्जिस्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन. व्हाट इज दिस? देखें एग्जांपल है इसका. वंस अगेन मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट. कांस्टेंट में हमने देखा एक लेस है एक ग्रेटर है. वी कैन सी दैट दिस इज अ ग्रेटर एंड हियर वी विल यूज became technique or two-phase method. You can see here the one of the constant is of the greater type. Here we see introduce select variable and artificial variable. आप लोगों को पता है कि इसमें select variable आएगा, इसमें minus time the select variable plus your artificial variable. We have already discussed this topic. तो हमने कहा आपको पता होना चाहिए कि एक one of the constant is greater, then you will use your became technique two-phase method and दोनों में से कर सकते हैं. हमने कहा चलें भाई z ये दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का है इधर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 4y, वहाँ जाएगा माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0. दिस इज x, ओके, प्लस 2y यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज, ठीक है, here are 2x प्लस y प्लस s1 इक्वल टू 4. लास्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y माइनस s2 प्लस a इक्वल टू 12. आपको पता है माइनस 2 s2 होता है. हम कहते हैं x y 0 तो माइनस s2 इक्वल टू 12, s2 इक्वल टू माइनस 12. तो हम कहते हैं ये तो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन को नहीं सेटिस्फाई करता. देन वी इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल वेरिएबल. जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी कांस्टेंट में तो बड़ी एक पेनल्टी हमें इंट्रोड्यूस करवानी होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और वो जो बड़ी पेनल्टी होती है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं m टाइम्स द आर्टिफिशियल वेरिएबल. माइनस के अगर मैक्सिमाइजेशन है तो इक्वल के इस साइड क्या लिखते हैं, माइनस m टाइम्स द आर्टिफिशियल वेरिएबल. इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस m है. Since the artificial variable is introduced in the last constant, a penalty of plus m is added to the left hand side of the objective row and the objective function देगा. वही कहा मैंने आपको, क्या कहा, इक्वल की इस साइड होता है माइनस m टाइम्स द आर्टिफिशियल वेरिएबल, इस साइड आप कहेंगे तो वो माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का. और आपको पता है कि हम कर क्या हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो आपके पास होता है उसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. यहाँ देखें इस स्लाइड्स पे नहीं है शायद, ठीक है, क्या होना चाहिए, इसका जो a का कोफिशिएंट है दैट शुड बी 0. और इसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे और हम माइनस m टाइम्स a करते हैं. क्या करते हैं, माइनस m इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर a तो माइनस m है, देखें माइनस m है प्लस m है, कैंसिल हो गया. यही करेगा. देखें अगेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड नॉट कंटेन द कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल. कह रहा है कि बेसिक वेरिएबल का नहीं होना चाहिए, योर a इज बेसिक वेरिएबल. Thus we multiply the last constant with minus m and add that to the above equation. वही बात की मैंने आपको कहा ना, क्या करेगा कि यहाँ पर जो है माइनस m से मल्टीप्लाई करेगा इस इक्वेशन को, इससे ऐड करेगा और इसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा. दिस विल बी योर रिजल्ट एंड here you can see that the artificial coefficient is 0. इस इक्वेशन में आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे, नॉट बेसिक. s2 आपके पास बेसिक हो जाता है क्योंकि s2 की जगह आप नॉन बेसिक करते हैं एक. ओके, देखें बेसिक वेरिएबल आपके पास कौन से, s1 एंड a, क्योंकि दो ही है, s2 तो आपका बेसिक हो जाए, नॉन बेसिक हो जाता है ना. और आप क्या करेंगे, z इक्वेशन के कोफिशिएंट 1
ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लें तो -3 -m या -m -3। यहाँ पे y कॉमन ले तो -4 -2m या फिर -4 -2m -4। यहाँ पे s2 का कोफिशिएंट m है और आपके पास राइट हैंड साइड -12m है, बाकी सारे 0 हैं। ये वही टेक्निक है जो हम लोग कर चुके हैं, बिग एम टेक्निक। फिर हम क्या करते हैं, मोस्ट नेगेटिव नंबर देखते हैं इस पूरे में कौन सा है, माइनस, क्योंकि m तो दोनों में सेम होगा ना, दोनों में सेम होगा तो -4 बड़ा है। -4 अगर आपके पास बड़ा है तो ये y क्या करेगा, एंटर द बेसिस। अब S1 को लीव करना है या A को करना है, तो हमने कहा भाई पाइवोट अपना कॉलम जो है उसके एलिमेंट से डिवाइड करें। ये 1 है, 4/1 4, ये 2 है, 12/2 6, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो इज 4। इसका मकसद है S1 लीव करेगा, y एंटर करेगा। देखिए y ने एंटर किया है, S1 ने लीव किया और पाइवोट एलिमेंट 1 है, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, न्यू जेड इक्वेशन इक्वल टू ओल्ड जेड इक्वेशन +2m +4 मल्टीप्लाई करें इससे, ये माइनस का है ये प्लस का, 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0। इसको 0 करना है तो आप क्या करेंगे, न्यू ए इक्वेशन इक्वल टू ओल्ड ए इक्वेशन -2 टाइम दी S1 इक्वेशन, -2 + 2 विल बी 0। देखें 0 और 0, ओके। फिर हम कहते हैं कि भाई, फिर आप क्या करेंगे, वंस अगेन यू विल मेक न्यू टेबल। आपने नई एक टेबल बनाई, दिस इज योर न्यू टेबल, ठीक है। आपने इसकी न्यू टेबल बनाई, फिर हम कहेंगे मोस्ट नेगेटिव नंबर। हम कह रहे हैं कि भाई मोस्ट नेगेटिव नंबर तो इसमें है ही नहीं, यू कैन सी हियर देयर इज नो नेगेटिव नंबर। एंड आप रेशो तो तब निकालें जब मोस्ट नेगेटिव नंबर हो। व्हाट इज द कंक्लूजन, ठीक है। देखें, the last station revealed that we cannot further proceed with maximization as there are no negative coefficient in the objective function। वही बात की ना मैंने, यहाँ पे आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है तो हम फर्दर तो मूव नहीं कर सकते हैं। बट द फाइनल सॉल्यूशन इज आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द बेसिस। और हम ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है बेसिस में। क्या है, बेसिस में। हम क्या कहते हैं, बिग एम टेक्निक में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई एलिमेंट भी नेगेटिव ना हो और आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस को लीव करेगा, देन यू से दैट दैट इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर तो ए आ रहा है, चले भाई। But the final solution is the artificial variable in the basis with the value at position level equal to 4। आपको ने देखा गया कि वैल्यू 4 है। This is the indication that second constant is violated। इसका मकसद है जो हमारा सेकंड कांस्टेंट है वो वायोलेशन क्रिएट कर रहा है जो गिवन क्वेश्चन में। एंड हेंस द प्रॉब्लम इज नो फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह रहा है, इसीलिए इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। क्यों नहीं है, ग्राफिकली भी तो हम देखें। इसका आप ग्राफ बनाएं, y को 0 पुट करेंगे तो x 2 मिलेगा ना, 2x = 4, देन x = 2। x 0 रखेंगे तो y 4। देखें 2 4, ओके, दिस इज योर ग्राफ। ओरिजिन आप चेक करेंगे तो ओरिजिन इसमें लाया करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 0 + 0 0 < 4 कर रहा है। देखें दूसरे में, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सॉरी दूसरे की पॉइंट निकालेंगे, y 0 करेंगे तो x 12 आ गया और x 0 करेंगे तो y 6। देखें 12 और 6, और ओरिजिन चेक करेंगे तो ये बाहर जा रहा है। देखें ये तो कभी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इंटरसेक्शन तो करेंगे नहीं। जिससे कहते हैं दो पैरेलल लाइन जो है उनके पास सॉल्यूशन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा। Therefore, a linear programming problem has no optimal solution if an artificial variable appears in the basis in the optimal table। आप लोगों को समझ में आया, ये कह रहा है कि ग्राफिकली भी आप बता सकते हैं और वैसे तो आपको ऐसे बताना है ना, टेक्निक से कह रहा है कि बिग एम टेक्निक की रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसके जो कोफिशिएंट है वहाँ पे वो सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, और बेसिस से आर्टिफिशियल वेरिएबल को लीव करना है। अगर नहीं लीव करेगा then you say that your optimality is not obtained and the solution of this problem is not existence। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन की आज, और दो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई। अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस होता है, बट उसके बाद बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है।
और हमने पढ़ा कि भाई नॉन एग्जिस्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन, कभी कभी ये होता है कि प्रॉब्लम के बाद फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जब आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस को लीव नहीं करता है, और जेड इक्वेशन आपके पास उसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे, और आर्टिफिशियल वेरिएबल को अब तो लीव करवा ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जब मोस्ट नेगेटिव नंबर होगा तो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है। And we have discussed till now the 7 variants of simplex method. First was minimization, second was inequality in the wrong direction, third was tie, that was degeneracy, fourth was temporary degenerate solution, fifth was unbounded solution, sixth was related to this unbounded solution but optimal bounded solution. Okay, and we have discussed this 8 point that were non-existing visible solution. This is how we have discussed till now, and we will continue in our next lecture and discuss the remaining two variants of the simplex method. One is multiple or alternative optimal solution, and the other is your last one, unrestricted variable. This is it for today, and the exercise will be given to you, and then we will move towards the topic duality, and then we will move towards transportation problem, then we will move toward assignment problem, and inshallah ta'ala we will do the game theory. This is it for today. Anyone wants to ask question can ask the question. I hope that you have cleared the idea. If anyone is facing any difficulty regarding the lecture of today, he may ask. Thank you.